Again, I am in front of you to explain about the concept that is related to determinants. Of course, in the book, I told you that what is the meaning of the determinants. But today, I am here to explain that how to evaluate the question, yeah, how to solve the question in which the proving is coming. You have to prove something, and there is a special feature of these type of lesson. In these type of question, you will see that we don't use direct expansion. Very first we will use the properties, and with the help of these properties you will be able to evaluate this question, as well as you will be able to prove that if this type of determinants has been given, so how to prove this, it will be told by me. Now you will see here are few properties. Of course, I will dictate you each and every property, whatever will be required for completion of this solution. See, you may see here that I had already solved this sum, so that we will decrease our time period. We will be able to explain property properly. I will be able to explain it properly in a lesser time, so that the maximum number of questions can be attempted in a minimum time. That's why I had already solved this question before explaining, and my audio quality will be also improved by this way. You will feel it also, friends. So students, the question is that determinants of 1a square plus bc a cube and this one that has been given, and you have to prove this one. So students, very first you will write down the question, you will take LHS, and after that this will be done. I'm repeating myself. Very first you will take this question again, then you will write down evaluation symbol and then equal to that one. What is the concept behind this? You have to understand. Just remind a thing I had told in a previous lecture. If a determinant like this has been given 1, 2, 3, 5, 7, 2, 9, 3, 5. So I had told you that you can expand it along with row or along with column. But if you will do for this question, so it will be quite tough question to you, quite long question will be it. So I had solved it with this method, and today I will tell you this question by two methods. One method has been explained here, and another method will be also told to you, and you will decide by which method you want to do this. So what we will do, I had already explained, but now I am going to tell you with the property. So for property, what is the target for us? We have to very first what we have to do, we have to make either one row or one column as one. There are so many processes to do so. I like if one process is here. This is a plus b plus c. This is 2a. This is 3b. This is again a plus b plus c. Again there is 3a. Again there is 2b. And then here is again a plus b plus c. And this is minus 4ab, and this is 3a. So what you can do, you can take a, b, c common from C1. You can take a plus b plus c common from C1. And after that, it will be like 1, 1, 1 here, and a plus b will come out. This is a property of the determinant, that how to expand it. So it has been already mentioned here. So of course we are not supposed to do so. After that, the second property, or second, और यू कैन से द सेकेंड जुगाड़ समझते हो? जुगाड़ का मतलब ये होता है किसी चीज को कैसे थोड़ा सा इजी बनाए. इसलिए हमने क्या करना है कि कोशिश करना है कि पहले ये 1 1 1 बन जाए. अब ये 1 1 1 बनने के लिए यहां तो ऑलरेडी 1 1 1 गिवन है. अगर ये 1 1 1 नहीं गिवन होता तो हमें इसको बनाना होता. जैसे मान लो सपोज दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन गिवन, तो व्हाट यू विल डू इन दिस, a प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन मिल जाएगा. किसमें से? C1 में से. सो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 से आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को बाहर चुरा लेंगे. तो a प्लस बी प्लस सी तो आपका बाहर आ जाएगा. तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 1 1, और ऐसे ही हो जाएगा. आफ्टर दैट हमको खुराफात करेंगे. सो यू मे सी हियर कि 1 1 1 इज ऑलरेडी हियर. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रूव और इवेल्युएट इट विदाउट एक्सपेंडिंग दिस. फिर दूसरा काम क्या करना है सर? तो दूसरा काम ये करना है कि किसी तरह से अगर आपको 2 जीरो एक रो में या एक सिंगल कॉलम में मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. तो हमने देखा क्या कि अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं और इससे इसको माइनस कर दूं तो 2 जीरो हमें मिल जाएंगे.
लेकिन उसमें एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि जब आप माइनस करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि R2 गिव्स R2 माइनस R1 देन R3 गिव्स R3 माइनस R2, ये मत करिएगा. Whatever you are going to add or subtract, the same value will be adding or subtracting in two rows or in two columns in simultaneously. So what I had done here for getting R2 and R3, we had subtracted R1. We had subtracted R1 from R2 as well as R3. तो हम जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 minus 1 0 will be here. Getting now? Then this will be subtracted. This will be subtracted from this. So what it would be written? It would be like that: b square plus ca minus a square minus bc. Both will be negative now when you are going to subtract. After that, you may write it down: b square minus a square and ca minus bc. I hope you have understood. If you had not understood, so going to explain it here. See how it would be here. If you have to subtract this one from this one, so it will be written like b square plus ca minus a square plus bc. After that if you will open it, so what would be here? B square minus a square plus ca minus bc. After that it would be what? B minus a and b plus a, and you may take c as common here. So it would be a minus b. Friends, you may understand one thing also here. It is b minus a and this is a minus b. So if you are supposed to make it b minus a, for that you have to take minus as common. As soon as you will change the sign of here, that will be b minus a, and it is what? B minus a, and this is b plus a. After that directly you can take b minus a as common. So as soon as you will take b minus a common inside the bracket, that will be b plus a minus c. The same thing has been done for this step as well as for this step also. So that R2 gives R2 minus R1, that I had done. This one minus this one, it is the same process I had done. And same here for this one minus this one. So this has come. Same here for b cube minus a cube is here, and c cube minus a cube is here. Here is the way for that. After that, the next step, in the next step, what it will be? It will remain 1 0 0. It is a square plus bc. It may be explained at b plus a, b minus a. You may take c as common, that is a minus b. Same here, it will be c plus a and c minus a. And what we can do? We can take b as common, so that would be a minus c. And for that, it will be c minus a and this one. Actually, here is the identity. I want to also tell you about this identity. The identity was a cube minus b cube is equal to, in a bracket, a minus b, in another bracket, a square plus b square plus ab. Here is the identity for that. And if here were a cube plus b cube, so it will be a plus b, and it will be minus, and it will be same as plus. So here are two identities that has been told in previous classes, 8th, 9th, 10th. You had understand, so you will be able to explain it properly. Even I had mentioned the identity that can be understood by you. After that, you may see here, बच्चा, कि b माइनस है तो यहां भी बैठा और b माइनस है यहां भी बैठा, तो क्या करें? इसको उठा बाहर फेंक दें. तो हमने क्या किया? b माइनस है दोनों में से कॉमन उठा लिया. That's why I had written here, taking common b minus a from R2. So as soon as you will take b minus a as common, it will be outside of that, and inside of that will be 0, b plus a plus c. You can see here, it is as soon as you will take b minus a common. So actually this is b minus a and this is a minus b, as I had explained here. So it will be minus c. That's why it has written b plus a minus c, and it is b square plus a square plus ab. Same here, if you will take c minus a common, so that will be 0, c plus a minus b. Why minus b? I had already told here. With the same process you will do, and that will be c square plus a square plus ac. So you can see it also. After that, what we will do, as 2 has been taken as common. So what we can do now, कि either directly we can apply the expansion process, but I think मैंने सोचा कुछ ऐसा कि ये कुछ और इजी हो जाए तो मजा आ जाए एकदम थोड़ा सा.
तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगत बढ़ाई। क्या बढ़ाई? जुगत बढ़ाई। क्यों बढ़ाई जुगत? क्योंकि यहां पे था बी माइनस ए, जहां पे था सी माइनस ए, तो बी ए आ चुका है, सी ए आ चुका है, बीसी नामक चीज अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इससे इसको माइनस कर दूं। तो मैं दैट्स व्हाई आई हैड रिटन R3 गिव्स R3 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया C प्लस ए माइनस बी माइनस ए एंड प्लस सी। Okay, so if you will change the sign, so that will be minus, a will be cancelled out by a, so you will get minus 2b and plus 2c. That's why this is 2c minus 2b. You may write practice on the rough work and you will be able to get that how it has come. This one minus this one I had done only. Same way I had done this one minus this one. So if you will do so it will be a square will be cancelled out by a square, तो a square से a square तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? c square minus b square plus ac minus ab, that I had mentioned here. आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास 2c minus 2b बचा। After that it may be explained expand at c minus b and c plus b, and here you may take something common. What is the common on that? Just check out here. What is common in this? a is common. So अगर आपने a common ले लेंगे तो it will be c minus b. And directly what we can do, we can take c minus b common from these two. Here is c minus b, here is c minus b. So c minus b is here also, and c minus b is here also. So taking c minus b common from R3, taking c minus b common from R3, that I had done here. After that, what will you get? This is b minus a, this is c minus a, and you had taken common c minus b. That has been mentioned here. After that, it will be 1 0 0, 1 0 0 is there, then a square plus bc, b plus a minus c, and 2 will remain here. It will be a cube, b square plus a square plus ab, and this is c plus b plus a है, c plus b plus a है, but I had written here b plus a plus c, क्योंकि प्लस में है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, तो हम किसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो with the use of associative property, what I had done कि I had written here b plus a plus c, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो this is b plus a, तो I had written here b plus a. Actually this was a plus b plus c, so that has been converted in this form. I hope you are able to understand. Very good. Then we are going to expand it. So expanding along with C1, expanding along with C1. तो C1 के हिसाब से जो हमने एक्सप्लेन किया, तो दिस इज अब एक काम हमने और किया यहाँ पे हमने जुगत बढ़ा दिया। मैंने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो इट बिकम्स a माइनस। सर माइनस गया कहां? उसका रीजन ये था कि बेटा इसको b माइनस c बना दो, तो एक माइनस यहां से भी कॉमन लिया, तो वन कॉमन हैज बीन टेकन फ्रॉम हियर एंड वन कॉमन हैज बीन टेकन फ्रॉम हियर, सो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। दैट्स व्हाई प्लस हैज बीन ओमिटेड। नाउ दिस इज a माइनस b minus c and c minus b, that has been written here. This one would be here, and after that this chotu determinants will come out. 1 and this chotu determinant will be written here. As I had told you, this will be removed and this will be removed. See, this can be done here. After that it will be here, that has been written. 1 तो गैप कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इतना मल्टीपल इतना आपको करना ही करना है। पहले बताया हुआ था कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये बाद में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो ये हो गया b प्लस ए माइनस सी, और ये हो गया b प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया, यू कैन राइट इट डाउन, दिस इज x एंड दिस इज y, x माइनस y एंड दिस इज x प्लस y. So you are going to multiply this, and in case of multiplication that will be a square minus b square. So it can be written as b plus a of whole square minus c square, then minus 2, and this one that has been mentioned here. With the help of identity you had opened it, that is b square plus a square plus 2ab and minus c square, then minus 2 will be multiplied inside of that. So that is what? Minus 2b square minus 2a square and minus 2ab. I hope you have understood. This plus 2ab and this minus 2ab has been cancelled out. So this is a minus b, b minus c, c minus a, and this is now plus b square is here and minus 2b square is here. So that will be minus b square plus a square is here and minus 2a square is here. So minus a square will remain here, and that is minus c square. Minus can be taken out here. So that is a minus b, b minus c, c minus a, and that is a square plus b square plus c square. Students, you had seen today that half of the lecture was in Hindi and half of the lecture was in English. Actually, that was completely English, so that
you may enjoy a little bit as well as you will be able to understand it how to solve this question. If there is any question in any particular line, you may mark it and you may WhatsApp on my number that you know very well already, that is 9235479880. If there is any query in any step, you may WhatsApp on that number and definitely I am going to help you for that. हाँ भाई, तो लो फिर से सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं. इसमें कुछ नहीं करना है. एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, जो कि कहती है कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट्स, कोई एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम जो है सम ऑफ टू एलिमेंट्स या सम ऑफ टू टर्म्स में होता है, तो इट मे बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. दैट हैज बीन डन हियर. सो 1 1 1 विल बी हियर. एक्चुअली देयर वर टू पार्ट्स एंड दिस इज a cube, b cube, c cube. So whatever is same that will be written here, and the sum of two parts will be splitted into two ones, a square, b square, c square, and bc, ca and ab. अरे भैया, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया. a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर पहले डिटर्मिनेंट्स में और bc, ca और ab दूसरे डिटर्मिनेंट्स में. कुछ नया नहीं किया है, बस हल्का सा स्प्लिटिंग है. प्रॉपर्टी है भाई ये डिटर्मिनेंट्स की. अब हमने क्या करना है, जो सेम प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, with the same process again I am going to do so. That has been done with the single determinants and it will be done with two determinants. Same R2 gives R2 minus R1 and R3 gives R3 minus R1. So when this one minus this one आप करेंगे तो ये गया 0, ये गया 0, b square minus a square, b cube minus a cube. Same here, c cube minus a square and c cube minus a cube. Obviously बात है, R1 is not going to be changed. R1 is not going to be changed. इसको आपने अपने दिमाग पे रख लेना है. सेम प्रोसेस हमने इसके साथ किया हुआ है. मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत होती है, हमने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, मैं फिर से दे देता हूं आपको 9235479880. कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लाइन में दिक्कत हो, अंडरलाइन करके स्क्रीनशॉट लीजिए, भेजिए. यू विल गेट द सोल्यूशन फॉर दैट. तो हमने इसको इस तरह से R2 को और R3 को मेंशन कर लिया. नाउ यू मे सी हियर कि इस रो में से आपको b माइनस ए कॉमन मिल रहा है. सर क्यों मिल रहा है? क्योंकि इट मे बी स्प्लिटेड एज b माइनस ए, b प्लस ए, एंड इट मे बी स्प्लिटेड एज b माइनस ए एंड b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, एज द आइडेंटिटी हैज बीन टोल्ड बिफोर फ्यू मिनट्स. सेम हियर, अगर आप इसको देखें तो इसमें से जब हमने इससे इसको माइनस किया था तो c वॉज कॉमन, तो c कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट में a माइनस b आ गया था. ये चीज इसके साथ हो गई थी, इसको तुम्हें पता ही है. तो यू में सी की इसमें से आपको a माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, या फिर b माइनस ए ले लो. तो चूंकि b माइनस ए यहां पर आ रहा है, c माइनस ए यहां पर आ रहा है, तो इस रो से हम b माइनस ए कॉमन लेंगे और इस रो से c माइनस ए कॉमन लेंगे. इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट्स के लिए अलग चलेगा और इस डिटर्मिनेंट्स के लिए अलग काम करेगा. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. अरे नहीं हो रही ना तो बोलो. थैंक यू. तो आपने क्या किया कि b माइनस ए इसमें रो में से कॉमन ले लिया, c माइनस ए इस रो में से कॉमन लिया. लेट्स सी व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. तो दैट इज 1 a स्क्वायर एंड a क्यूब. आफ्टर टेकिंग b माइनस ए कॉमन, दैट विल बी b प्लस a एंड दैट विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab. थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज बोल देना, ताकि अगली बार से स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगा. c माइनस ए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे भी आपका c प्लस a हो जाएगा और हियर इट वुड बी. यहां से आपने माइनस बी जब निकाला था तो c बच गया था, यहां से निकालेंगे तो ये बच जाएगा. सेम हियर, यहां से निकालेंगे तो b माइनस का b बच जाएगा. माइनस का b क्यों बच जाएगा? कि बच्चा आपने c माइनस ए कॉमन लिया है, लेकिन यहां पर a माइनस c है, तो हमने माइनस बाहर रख लिया, तो ये रिवर्स हो जाएगा. दैट विल बी c माइनस है, तो ये माइनस का b बचेगा. इट विल रिमेन हियर. आई होप समझ में आ रहा होगा. इट विल रिमेन सेम. आगे इसके साथ में आपने देखा हो. अब उसके बाद डायरेक्ट हम चाहे तो यहां पे एक्सपेंशन मार सकते हैं, है ना. यहां पे डायरेक्ट हम एक्सपेंशन मार सकते हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन सोचा कि थोड़ा और छोटा कर लें, शायद कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि हमारे पास b माइनस ए आ चुका था, c माइनस ए आ चुका था, शायद bc वाला कुछ मिल जाए. तो हमने देखा कि अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, तो जब c प्लस ए माइनस b माइनस ए करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. c प्लस ए, फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस b माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये c माइनस b हो जाएगा. इससे इसको माइनस आप करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा सी ए माइनस ए बी. दैट हैज बीन मेंशन्ड. आई होप समझ में आ रहा है. बहुत बढ़िया बात है. जब इसको करोगे तो ये माइनस बी और फिर माइनस करोगे तो ये प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सी माइनस बी.
इसके साथ ये चीज करेंगे तो ये आ जाएगा। रफ में करके देख लेना कहीं कोई डाउट हो, और फिर भी कोई दिक्कत हो भैया नंबर है ना इसीलिए दिया है, यूज करना इसका। आगे आओ तो भाई आप देखो जैसे ही आपने किया तो ये आपको मिल गया बी प्लस है, यहां तो इसके साथ कोई मतलब नहीं है, जो भी छिड़कानी हमने की है वो अपने C3 के लिए की है, तो जो भी अच्छा सॉरी बेटा ये यहां पे गलत है, हाँ इसको ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है ये R3 और ये भी R3 और ये भी R है, जो भी किया है मैंने रो में किया है, इस रो में से इस रो को माइनस किया है, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, चलो याद रहेगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, R3 गिव्स R3 माइनस R2, उसके बाद वो सारे सिस्टम हुए हैं एज आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हाउ इट हैज बीन डन। अब आप देख सकते हैं कि R3 में से टेकिंग C माइनस बी फ्रॉम R3, क्यों, क्योंकि C माइनस बी देखो यहां पे भी है। अब अगर जरा इसको थोड़ा सा समझना आपको, मैं थोड़ा सा यहां पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, इसमें को इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, इफ यू विल ब्रेक दैट वन सो इट विल बी C प्लस बी एंड C माइनस बी। इसमें से अगर आप C क्या कॉमन मिलेगा बताओ, ये मिलेगा ना, तो A कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में C माइनस बी हो जाएगा। तो आप देखो C माइनस बी यहां भी है, C माइनस बी यहां भी है, तो C माइनस बी हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह यहां तो C माइनस बी है ही है, इसको C माइनस बी C प्लस बी कह सकते हैं, यहां से C कॉमन ले लेंगे सॉरी A कॉमन लेंगे तो ये भी C माइनस बी हो जाएगा, तो C माइनस बी यहां से भी बाहर निकल आया। तो भैया पहले वाले इससे भी C माइनस बी बाहर निकल आया और दूसरे वाले इससे भी C माइनस बी बाहर निकल आया। सी व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, देयर इज नो चेंज इन R1 एंड R2, इट विल रिमेन सेम। What will be in R3 we have to focus on that. As soon as you will take C minus B common, अंदर क्या बचेगा भैया, यहाँ 1 बचेगा। इधर जरा ध्यान देना, ये C plus B C minus B था, C minus B जैसे ही बाहर निकाला तो C plus B बच गया, तो C plus B, लेकिन यहाँ अकेला बेचारा केवल एक बचा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे A, जो कॉमन था। और इसी तरह से दूसरे सिस्टम में आप देखिए तो C minus B जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और ये तुम्हारा C plus B, और यहां पर क्या बचेगा भैया, जब देखो A कॉमन निकालोगे तो मतलब C प्लस माइनस बी तो बाहर निकाल लिया था। बात समझ में आ रही ना, नहीं आ रही तो प्लीज थोड़ा सा देख लो, मैं इसको बता दे रहा हूं एक बार। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AC माइनस ए बी है, ये हो जाएगा C माइनस बी और C प्लस बी में हो जाएगा, और इधर से अगर आप C कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, सॉरी बेटा C नहीं कॉमन मिल रहा है, A कॉमन मिल रहा है, तो A आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा C माइनस ए। अब देखो C माइनस ए दोनों में से कॉमन मिल गया, C माइनस बी बेटा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक इससे एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं आपको कि C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कोई प्रोसेस है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो C माइनस बी और C प्लस बी हो जाएगा, इसमें से A कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में C माइनस बी हो जाएगा। C माइनस बी आप इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही C माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा C प्लस बी और प्लस A। यही मैंने यहां पर किया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर भी ये ऐसे ही होगा, तो C माइनस बी जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा, और इसी तरह जैसे इसमें से C माइनस बी कॉमन लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा। दैट हैज बीन मेंशन हियर, C प्लस बी प्लस A। आई होप पूरी तरह से यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत बढ़िया बात है भैया। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग विद C1। C1 से हमने इसका एक्सपेंशन मार दिया। C1 से एक्सपेंशन क्यों मारा, क्योंकि ऑलरेडी 2 जीरोज हैं, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी 0, इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी 0, जो भी रिजल्ट मिलेगा इस 1 के लिए मिलेगा। जब भी हम इस 1 के लिए बात करेंगे, इस 1 के लिए बात करेंगे तो इसे एक छोटू डिटर्मिनेंट्स यहां पे क्रिएट हो जाएगा ना, तो जैसे ही हम इस 1 को लेते हैं तो ये छोटू डिटर्मिनेंट्स क्रिएट होगा, जैसे इस 1 को लेंगे तो ये छोटू डिटर्मिनेंट्स क्रिएट होगा। सवाल होता है सर ये कैसे हो जाएगा, तुम्हें पता है जैसे इस 1 को लोगे तो ये वाली रो और ये वाली रो रिमूव हो जाएगी, जैसे इस 1 को लोगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से अपने 2 छोटू डिटर्मिनेंट्स वहां पर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा भैया तो उसके बाद तुम्हें आ ही गया होगा, तो C माइनस बी यहां पे कर लेंगे, आगे कैलकुलेशन शुरू, तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। पहले भी बताया था कि हमें A माइनस बी चाहिए, यहाँ B माइनस ए है, माइनस कॉमन ले लिया। हमें B माइनस चाहिए, यहाँ पे C माइनस बी है, तो इससे भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस बताओ यार प्लस, तो A माइनस बी, B माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए सेम यहाँ पे हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिस छोटू ब्रैकेट विल कम हियर एज वेल एज अगेन अनदर छोटू ब्रैकेट विल कम हियर। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पक्का है कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके दिया कुछ भी नया नया किया है, ये ऐसे ही लिखा है, इसका एक्सपेंशन मारा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो आप देखो ये B प्लस ए है और ये भी B प्लस ए है ना, तो ये B प्लस ए जब C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा BC और AC, वो लिख दिया।
ये b प्लस ए, जब b प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, एंड b प्लस ए का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर उसके बाद माइनस करके ये आ जाएगा -1 इंटू इतना। वही एक्सपेंशन पहले बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन लगा के ये मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर बोला था कि ये प्लस साइन कैरी करता है और ये माइनस साइन कैरी करता है। प्रोसेस लगाया है, जितना कटना था कट गया है। दूसरे प्रोसेस में भी वही किया, सेम चीजें ऐसे ही बाहर आ गई हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का बी सी, माइनस का ए सी। सारी चीजें मेंशन मुझे पता है, आप लोग इतने समझदार हो कि यू कैन एक्सप्लेन दैट वन। बहुत बढ़िया बात है, सब कट जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक टर्म ये है इतना बड़ा सा, और एक दूसरा टर्म छोटा सा ये आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड। इन दोनों टर्म में आपको इतना कॉमन मिल रहा होगा, तो ये आपने उठा लिया कॉमन। जैसे ही इसको कॉमन उठाया तो अंदर आपका आ गया, ये सब तो कट गया था। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या है? देखो कुछ मिस हो रहा है मेरे पास से, तो मैं फिर से इसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे पास जो बचा है वो जरा ध्यान से देखना कि ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का ab है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ab हो जाएगा, ये प्लस bc बचा है और प्लस ac बचा है, तो ये तो हमने लिख दिया। फिर यहां पर जो बचा था दैट हैज बीन मेंशन, सब कुछ कट गया, केवल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा। माइनस हैज बीन टेकन एज कॉमन, इट इज ए स्क्वायर ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, and in another bracket that is a square plus b square plus c square, that has been proved. I had told you many times, wherever you are facing the problem, just take the screenshot, just draw the little bit line on that with the help of editing option and all, and send on this number. You will be definitely able to resolve the problem, whichever problem you are facing on understanding that. I had tried my best to explain the solution of this sum. Even though if you are facing any problem, just write down on the comments box. In another video, this type of problem won't be happen in front of you. Thank you.